Yeah, this lecture is by online system. Okay. So this is my first lectures on your batch. Okay. So I don't know what is your level of understanding of economics, whether it is the banking, RBI, or any government exams. Okay. So just I open this book. Just first time I'm doing this book to show you. ठीक है, मेरा पहला लेक्चर आपके ऊपर है, इसलिए ये मैं बुक लेके आया सो दैट मैं आपको दिखा सकूं कि कहाँ से क्या पढ़ना है या whatever the content of this. Okay, so let me introduce myself first. Okay, my name is Professor Suhas Sargar. I'm living in Panvel. I complete my pharmacy graduations from मुकेश अंबानी जहाँ से पढ़ा था वो कॉलेज माटुंगा और उसके बाद I complete my MBA in finance. I clear my NET/SET exam also. 2012, 13 and 14 I appear for the UPSC pre-mains interview stage pura and simultaneously 2014 and 15 I cleared the Rajya Seva MPSC. I selected in the SBI PO, but मेरा टारगेट यूपीएससी था, तो एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर का वो जॉब 2013 का एग्जाम 14 का रिजल्ट, तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया. अगर वो किया रहता तो मैं आज प्रोबेशनरी ऑफिसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रहता और लगभग सैलरी 1,10,000 के आसपास 7 years. My interest, my optional was in the UPSC is public administration and economics 2012, 11, 12, 13. After that, the UPSC changed the syllabus and all patterns of the optionals and all that. So I dropped the economics and public administration because we need to adjust ourselves with the syllabus of the competitive exam. So I choose the sociology subjects, and once again in 2014 and 15, I mains an interview. Middle class family, full time पढ़ाई करना possible नहीं होता, तो जॉब करना पड़ता था. मेरे पापा was in Bombay Ports. He is a government employee. Now he is a pensioner without tension. COVID-19 च्या काळात पण मजा आहे. So उनकी सैलरी चालू है और मेरा पेंशन चालू है. Wife is my police inspector. Yeah, she is a police inspector. राज्य सेवा. जानवी, मेरी आवाज आ रही है आपको? Am I audible, जानवी? Yes, sir. Janvi, my voice is audible to you? Yes, sir. Okay, reply ala. Okay. So after that, 2012 से फुल टाइम जॉब के साथ साथ मैं टीचिंग फील्ड में हूँ. आरबीआई, बैंकिंग, यूपीएससी, एमपीएससी ये सारा पढ़ा था. इकोनॉमिक्स में स्कूल में पॉलिटी एंड जनरल स्टडीज पढ़ा था. So I don't know कि what is your level, and yes sir, I voice is good. Thank you Janvi, thank you. Yeah, मैंने मोबाइल को ईयरफोन कनेक्ट नहीं किया. I use my speaker. My voice is थोड़ा सा प्रॉब्लम है गले का, इसके लिए थोड़ा आवाज नहीं आ रहा. ऑनलाइन ऑफलाइन जब लफड़ा रहता है ना, तो दोनों तरफ देखना. It's like in some British officer told, I have a 2 wife, one is Mohammedan and one is Hindu. British officer, वैसे अभी ऑनलाइन खेलना पड़ता है. No problem. I don't know कि Janvi, what is your graduation? I completed my BE in electronics and telecommunication in 2021. Please repeat. मेरा मोबाइल दूसरे स्टूडेंट के पास है, वो आपका आंसर सुने. Sir, I completed my BE in EXTC
हाँ, बी कंप्यूटर, ओके। और मुझे पता नहीं कि आपका एग्जैक्टली लेवल क्या है पढ़ाई का। आपका और आपका, यू ऑल आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, यू ऑल, यू ऑल, so you might know some little bit concepts and all that. Okay, so now the today's topic is national income. National income, जो normally banking sectors grade B exams में कई बार आता है, and during COVID-19 this is the main issue of the country to maintain their national income at a stable level. Okay, so Janvi, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, आई होप तुम्हें ऑल आर मैंशन और ऑल आर मैंशन सगळे नॉर्थ विच यूपी, यू अंडरस्टैंड मराठी, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी ओनली, हिंदी नो मराठी, ओके, लिटिल बिट आड़ा वाड़ा कीड़ा देन बड़ा यार केंदा, व्हाट इज योर नेम, तमिलियन, ओके, थोड़ा तो आना चाहिए, थोड़ा सीखना भी चाहिए, नो प्रॉब्लम। Janvi, you are Malaysian or Hindi? Yes, sir. Yes, sir. I can understand Marathi. So national income, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहेंगे, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहेंगे, तो समझ में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। So let me introduce some concept, and banking sectors के RBI के मेंस एग्जाम में there is a theory paper is there, so they ask a lot of questions based on what are the factors are responsible for the GDP to grow, to diminish, या उसको कहते हैं depreciation, कि how GDP का ग्रोथ होना चाहिए। GNP का इशू आता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन आता है, नेट नेशनल प्रोडक्शन आता है, ओके। तो ये सारे जो इश्यूज आते हैं, तो उनको बढ़ाने के लिए क्या करें, what are the different parameters, based on that we calculate the national incomes, gross domestic product and all that. Basically रहता क्या है, फर्स्ट एक फैमिली है, कंसीडर द वन फैमिली इज देयर, one family is there who is living in India's land, okay, who is living in India's land, okay, तो थोड़ा सा इसको लोग कैसे दही होता है गरज करता है, सही इकड़े दिकड़े करता है, okay, so one family is there, इंडिया में रहती है, वो इंडिया के जमीन के ऊपर कुछ पैसा कमाती है, they earn the money, उनका एक लड़का है जो यूएस में है, वो बेसिकली क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, एजुकेशन, सो उसके पापा मंथली या साल का बोलो लगभग 2 लाख रुपीस फॉरेन में भेज रहे हैं। सेम उनका ही दूसरा एक लड़का है जो यूएस में रहता है, और वो वहां पे एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद वो अपना क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, वो वहां से अपने देश में फॉर एग्जांपल 3 लाख इंडियन रुपीस करेंसीज में वो पैसा भेज रहा है। सो जानवी, आर यू गेटिंग? यस सर। क्या बोल रहा हूँ? यस सर। मैं जो मोबाइल से कैमरा में दिख रहा हूँ वहां से एग्जैक्टली मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, लेकिन आप जो बोल रही हो जानवी, वो मेरा मोबाइल सामने एक स्टूडेंट है उसके पास है, सो इज इट कंफर्टेबल? यस सर। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं कि जीडीपी, नेशनल इनकम एंड ऑल दैट। तो पापा का देश का यहाँ पे जॉब या बिजनेस करते हैं, तो वो से फॉर एग्जांपल साल का 6 लाख रुपया कमाते हैं, 6 लाख। तो इंडिया के अंदर साल में 6 लाख रुपया कमाते हैं, उसमें से वो लगभग 2 लाख यूएसए भेजते हैं और उनको 3 लाख रुपया मिलता है। तो उनका फाइनल इनकम या उनका बैलेंस बोले वो क्या है, 6 लाख माइनस 2 लाख बोले तो 4 लाख प्लस एक्चुअली 3 लाख, तो हो गया 7 लाख। इट मींस उनका साल के एंड तक जो भी ट्रांजैक्शंस होता है, मतलब उन्होंने भारत की जमीन के ऊपर रह के जो पैसा कमाया, उसमें से 2 लाख रुपया अपने छोटे बच्चे को
या लड़के को फॉरेन में भेजा, ओके, और वो भेजा 2 लाख रुपया, लेकिन उनका ही एक बच्चा है जो फॉरेन में रहता है और वो जॉब कर रहा है या फिर बिजनेस कर रहा है और ही इज अर्निंग मेंबर, तो वो बड़ा लड़का या लड़की जो भी है वो 3 लाख रुपया भेज रहा है, चाहे वो डॉलर में भेजे या दिनार में भेजे या येन युआन में भेजे, लेकिन इंडियन रुपीस में उसको कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद दे गॉट अबाउट 3 लाख इंडिया का करेंसी, अपना बप्पू का डीपी, महात्मा गांधी का, चाहे व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का डीपी, स्टेटस, स्टोरी कितना भी बढ़ गया, बप्पू का डीपी कमाने के लिए सब लोग लगे। बप्पू का डीपी चाहिए ना अपने को। तो 7 लाख इज अवर व्हाट इनका इनकम, तो इसको बोलते हैं नेट, उनका जो भी इनकम रहेगा। तो सेम प्रिंसिपल भी अप्लाइज टू अवर इंडिया, सेम प्रिंसिपल भी अप्लाई टू अवर इंडिया। तो इंडिया के जमीन के ऊपर, आई रिपीट, इन अ डिफाइंड टेरिटोरियल एरिया, दैट मींस एक क्षेत्र जमीन के ऊपर का कि जहां पे पूरे साल में विद इन अ डिफाइंड पीरियड, बट लेकिन in terms of finance, in terms of economics, they consider 1 year as a defined period, and that too also in Indian 1st April to 31st of March. Actually, there are the lots of voices are raised during the British period that, and after independence also, we have to make our Indian financial year as per our agricultural productions and all. Apart from that, there are the other scientists or other economists are there. They are saying we have to make the date of our financial year from 1st Jan to 31st of December. It will be easy for the calculations, for the other purposes and all that. But God knows, ब्रिटिश पीरियड से ये चला आया है, उसमें बदलाव लाने का सोचा, लेकिन फर्स्ट ऑफ जून से लेकर 31st ऑफ मई तक हम लोग करें, लेकिन देयर आर द लॉट्स ऑफ अपोनेंट्स सिस्टम्स आर देयर, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का जो नॉर्मली मेजॉरिटी इज रूल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ऑल, सारे एशियन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स उनके क्या थे, गुलाम थे। तो ब्रिटिशर्स ने जो सिस्टम सेट किया था, whether it is administrative system, whether it is a financial systems and all that, we follow that system blindly, but it is वो हमारे ब्लड में चला गया कि गुलामी करते करते आदत बन गई, तो फाइनेंशियल ईयर को भी हम लोगों ने एक्सेप्ट किया एक्चुअली। तो यहाँ पे होता क्या, विद अ डिफाइंड एरिया, दोनों को तरफ बोल रहा हूँ, she is from engineering background, she might be difficult to understand, मुझे पता नहीं कि इंजीनियरिंग में तो ये ऐसा नहीं रहता, we are from science background, okay, you are from commerce background, but 11th-12th से GDP, GNP, NNP, ENI, ये सारा रेशियो चालू रहता है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर होता है प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, फिर रहता है व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज डेवलपमेंट एंड व्हाट इज प्रोग्रेस, अलग अलग कैटेगरीज में इसको बांट दिया जाता है। फिर जीडीपी आए, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यूज में से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आरबीआई ग्रेड भी स्पेसिफिकली इंटरव्यूज में और मेंस में से क्वेश्चंस लिखने को आते हैं, बाकी क्लरिकल का या बैंक पीओ का कोई भी जवाब या आरबीआई ग्रेड या असिस्टेंट का वो सारा क्वेश्चंस टिक मार्क जैसा रहता है, एबीसीडी ऑब्जेक्ट जैसा, लेकिन यहाँ पे थियरी पेपर्स रहता है ग्रेड बी में, और नाबार्ड के भी कई सारे से पोस्ट है जहाँ पे प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव रहता है लेकिन मेंस सब्जेक्टिव रहता है, और वो एक बार अगर आरबीआई ग्रेड बी का हो गया तो यार 1.5-2 लाख रुपए महीना आराम से आते हैं महीना, और वो भी सैटरडे संडे छुट्टी, 10 to 5 का ड्यूटी, मंडे फ्राइडे, उसमें भी साले पंच मार के तो तंबाकू खा के टाइम पास करने वाले बंदे भी है, कमाते हैं। आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी वगैरह, आरबीआई ग्रेड बी इज द टॉप मोस्ट रनिंग पोस्ट इन इंडिया। नाबार्ड का भी है लेकिन उतना नहीं है, लेकिन नाबार्ड के लोग ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा भ्रष्टाचार वगैरह बहुत होता है, क्योंकि they are actually getting the fund from the central government budget,
अब वो ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ के आसपास रहते, 6,000 करोड़ से लेकर 12,000 करोड़ तक का साल का पैसा उनको मिलता है। थोड़ा आवाज खराब है, समझो क्या, ठीक है। 6,000 करोड़ से लेकर 12,000 करोड़ तक का वो बजट रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के, हर साल के बजट से नाबार्ड को दिया जाता है। नाबार्ड पूरे अपने देश में जितने भी नेशनल मतलब एग्रीकल्चरल बैंक है, ग्रामीण विकास बैंक है, छोटे छोटे किसानों को जो लैंड डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, तो ग्रामीण, क्योंकि होता क्या कि नॉर्मली सिटी लाइफ में वी आर हैविंग lots of industrial activities and so we are having a fresh money, मतलब महीने के महीने आता रहता है, तो we deposit our money in the bank sector, so वो जैसे डिपॉजिट हो जाता है उसी को लोन करके किसी को घर लेना है, दुकान लेना है, बिजनेस सेटअप करना है, सब ग्रामीण रूरल इंडिया का जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जो है वहाँ पे फ्रेश मनी नहीं रहता, वहाँ पे 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद जब धान आ जाएगा, हार्वेस्टिंग हो जाता है, तब जाके फाइनली वो प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ये इश्यूज आता है कि वो लोग वैसे भी बैंक जो रहता है वो तालुका या डिस्ट्रिक्ट की जगह पे रहता है, तो दे कांट एबल टू डिपॉजिट द फ्रेश मनी आफ्टर एवरी वीक और 2 वीक्स जाके डिपॉजिट करें। दैट्स द इशू कॉल्ड एज द करेंसी फ्लो या मनी फ्लो का मैटर होता है। तो मनी फ्लो इन रूरल एरिया इज द बिगेस्ट इशू। दैट्स व्हाई सेंट्रल गवर्नमेंट हैज there is one system is there through the budget of the central government. They allow some fund from the government of India transfer to the NABARD, and NABARD is now transferring this money, transfer this whole sum of money to the all Jilla, Bhuvikas Bank, Grameen Bank, Rural Bank, and lots of there are the other institutions are there in the India. No, Bharat. India बोले तो सिटी, भारत बोले तो ग्रामीण भारत, हम लोग बोलते चंद्र, सही है। तो वहां पे वो अलग है। नाउ द इशू यहाँ पे यह आता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट मींस व्हाट एंड द हाउ जीडीपी के अलावा भी अदर पैरामीटर्स आर यूजफुल। जीडीपी तो इट्स अ जनरल टर्म, से फॉर एग्जांपल वी आर सेइंग कि यहाँ पे उसका 6 लाख का खुद का इनकम था, लेकिन उसने गवाया कितना, 2 लाख रुपया यूएस को भेजा, लेकिन उसने कमाया कितना, दैट इज कमाया। इट मींस व्हाट, अपार्ट ये जो फॉरेन से बड़े लड़के ने उनको 3 लाख रुपए भेजा, उसको फाइनेंशियल टर्म में हम लोग बोलते हैं रेमिटेंसेस। व्हाट रेमिटेंसेस, व्हाट वी से रेमिटेंसेस। जानवी समजते का? Yes, sir. मी जे शिकवतोय ते कळतंय का बाळा? Yes, sir. ओके, काही डाऊट असतील तर विचार। हा जो माझा मोबाईल आहे तो इथे बाकीचे स्टुडंट आहेत ना त्यांच्याकडे ठेवलेला आहे। ओके, डाऊट असेल तर मेसेज टेक्स्ट कर मला येईल। Okay, sir. We called it as a remittances. Remittances means what? Foreign से आया हुआ पैसा। Okay, foreign से आया हुआ पैसा। We add that money. Okay, in some calculations or in some conceptual definitions. कुछ पैसा भारत से गया, that means we minus from our production. लेकिन यहाँ पे there are lots of concepts are there. That is called the GDP, then national net GDP, then national domestic product या national income बोलते हैं इसको। फिर आता है अपना what is it, net national product वगैरह आता है, GNP आता है, अलग अलग concepts are there. अगर इकोनॉमिक्स में अगर आप ऑप्शनल में जाओगे आरबीआई ग्रेड बी के, तो आरबीआई ग्रेड बी से भी ज्यादा यूपीसी के ऑप्शनल्स में देयर आर लॉट्स ऑफ, जो कॉमर्स में भी आप लोग एमकॉम तक नहीं पढ़ते वैसे डेफिनेशंस एंड इक्वेशंस सम वगैरह वो आते हैं यूपीसी के ऑप्शनल्स में, लेकिन ग्रेड बी में ऐसे सम्स वगैरह नहीं आते। दे नीड ओनली द कांसेप्चुअल क्लैरिटी, बाबा ये कर है तो उसका कैलकुलेशन वगैरह पार्ट नहीं आता। जस्ट बाबा जीडीपी बोले तो क्या। नाउ वी विल डू small and determined factors. GDP, GDP हम लोग बोलते हैं कि यूएसए अमीर है, चाइना soon take over the यूएसए वगैरह, इंडिया अभी भी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऐसे बोलते हैं।
Okay, in terms of GDP, लेकिन in terms of national income we are at the 6th number. भाई अभी बोल रहे थे तीसरे रैंक पे और अभी बोल रहे छठवें रैंक पे, ये क्या लफड़ा चल रहा है? So it is nothing but the calculation and on base of different parameters. Apart from that, there is one more index is there, which is calculated by the World Bank. World Bank और वो ऐसा एक पहला देश है जो happiness index calculate करता है, that is Bhutan. भूटान अपना एक देश है ना, अपने बाजू नेपाल, भूटान, अगर अपने ठीक सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के थोड़ा सा ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर वाला देश सिक्किम के, वहां पे भूटान नाम का एक देश है। वो देश दुनिया का पहला देश है जो हैप्पीनेस इंडेक्स को कैलकुलेट करता है। बट हैप्पीनेस इंडेक्स को कैलकुलेट, अभी याद कैसे रखे कि हैप्पीनेस इंडेक्स ये भूटान कैलकुलेट करता है। भूटान का जो राजपुत्र है उसका पढ़ाई दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में। उसकी जो वाइफ है वो भी उसको दिल्ली में, शी इज आल्सो भूटान। बाहर से वो प्रेम हुआ था और वो राजपुत्र है। जब शादी उसका हुआ था 2011 के आसपास, आई थिंक 11 या 10 के आसपास, तो वो इंडिया में आया था। तो इंडिया में हनीमून के लिए आया था, तो उसके हनीमून का सारा खर्चा मनमोहन सिंह सरकार ने उठाया। कोणाचा हनीमून कौन साजरा करते हैं, पैसे कौन भरते हैं? हाँ, वो आया तो आया, अकेला आया था क्या? 2 जन आया था, उसका वाइफ हो गई। वो दिल्ली में पढ़ा था, तो इट्स इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स। राजपुत्र यदि खुश हो गया तो भूटान इंडिया के अलायंस में आ जाएगा, चाइना के थोड़ा सा विरोध करेगा, ऐसा एक इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी है। तो नाउ उसको ट्रेन से घुमाने के लिए उसको राजस्थान देखना था, उसके भाई हनीमून के लिए राजस्थान। तो पैलेस ऑन व्हील बोले तो ट्रेन के ऊपर पूरा महल खड़ा किया था भारत सरकार, उसके अंदर बैठ के वो ट्रेन से घूमे। डार्लिंग ये देखो इंडिया। अभी याद रहेगा कि वो कितना हैप्पी है कि बाहर वाले देश भी उनको आनंद से अपने देश में लाके घुमाते हैं, गाइड वो भी फ्री में। तो कितना आनंद है। तो अभी याद रहेगा कि हैप्पी कंट्री, दूसरा देश भी उसके वो अच्छा रहे, आनंदी रहे, इसके लिए। तो नाउ वन फैक्चुअल डेटा इज योर माइंड, हैप्पीनेस इंडेक्स कैलकुलेट करने वाला देश भूटान। जीडीपी एक देश में या कोई भी पर्टिकुलर रीजन्स में 1 ईयर, बाय 1 ईयर बिकॉज इट इज अ फाइनेंशियल कैलकुलेशंस। 10 साल क्यों नहीं, 6 महीना क्यों नहीं, 1 साल क्यों नहीं, 1 महीना क्यों नहीं? भाई ये फाइनेंस नहीं है, ये इकोनॉमी है। इकोनॉमी इज अ बिगर टर्म। फाइनेंस इंडिविजुअल होता है, कंपनी के लिए होता है, इकोनॉमी पूरे देश के लिए होता है। इसमें फाइनेंस में खाली पैसा कितना आया, पैसा कितना गया, टैक्स कितना आया, टैक्स कितना गया, ये होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में there are lots of factors that it means it includes the education, it includes the ski, it includes the atmospheric pressures, it includes the international geopolitics also there, the environmental issues are there. Apart from that, people's mindset and culture are involved in the economy. That's why the economy is the largest term. बहुत बार इकोनॉमिस्ट जो रहते हैं ना, वो आंकड़े ऐसे देते हैं कि जीडीपी कम हुआ, जीडीपी बढ़ा, जीडीपी इसके कारण कम हुआ, जीडीपी उसके कारण कम हुआ। फाइनेंस में वो लोग बोलते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा जस्ट बिकॉज वी इंक्रीज द सेल, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा जस्ट बिकॉज वी डिक्रीज द कॉस्ट, कंपनी का लॉस हुआ बिकॉज वी गिव द लॉट्स ऑफ मनी टू आवर लेबर, सैलरी बढ़ा। कंपनी का प्रॉफिट घटा क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्सेशन ज्यादा बढ़ा, और इट्स अ मार्केट इकोनॉमी। So price we have to keep the constant in a comparison to the other competitors. So price कम रखा, tax बढ़ाया, cost बढ़ाया, तो कंपनी का profit कम है. It means it is called as a, in terms of money. लेकिन economy में ऐसा, economy is more than finance. Okay, तो RBI में questions पूछा रहता है normally कि how GDP is calculated, what is the factor cost, what is the market cost, and what are the different parameters. Based on that, we calculate the GDP. What is the role of the currency of both the nations or the world? Plays an important role in the GDP
डिसाइडेशंस। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग पानी तो लीटर से माप लेते हैं और गेहूं और ज्वार तो हम लोग केजी से नापते हैं और मुंबई टू नागपुर का डिस्टेंस हम लोग किलोमीटर में नापते हैं। सो इट मींस हर एक चीज को कैलकुलेट करने के लिए देयर आर सम यूनिट्स, देयर आर सम मेजरमेंट्स, सिग्निफिकेंस और फॉर्मूलाज आर देयर। बट इकोनॉमी में पैसा मापना, उसके हिसाब से देश को अमीर या गरीब घोषित करना ये इजी है, लेकिन यार इन कंपैरिजन टू सम अदर नेशंस डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि यूएस का है डॉलर, ब्रिटेन का है स्टर्लिंग, पाउंड, स्टर्लिंग का पैसा और पाउंड उसका रुपया जैसा बड़ा। ओके, अगर बोलते हैं ना पैसे यानी रुपए, रुपए बोले तो बड़ा, पैसा बोले तो एक दो रुपये, 100 पैसा, 100 पैसा, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो दैट टाइम वी कंसीडर इट एज अ डेप्रिसिएशन आल्सो एंड करेंसी का एक दूसरे के साथ वैल्यूएशन। नाउ अभी जीडीपी एक देश में, एक क्षेत्र में, डिफाइंड एरिया में, डिफाइंड पीरियड्स में कितने वस्तुओं का या सेवाओं का निर्माण हुआ। अभी क्वेश्चंस ग्रेड बी में आता है कि द रॉ मटेरियल व्हिच वी मेड during particular year is called as GDP. No, it's a final product. It's a final product and services, not in between. अभी आप बोलोगे यार गेहूं ये फाइनल प्रोडक्ट है, हाँ है। फिर आप बोलोगे यार कोई कार का पार्ट्स बनाया हम लोगों ने, मशीन बनाया कुछ कुछ, it is not final product. The car is the final product. It means and while calculating the GDP, we need to consider the final product which is not in a position to convert in the another form. मतलब तेच फाइन, त्याच्यापेक्षा दुसरं नाहीच। त्याची प्राइस क्या है, उसका प्राइस क्या है, ये हमें देखना और वो देखना जीडीपी में आता है। लेकिन यहाँ पे एक झंझट होती है। से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने गेहूं खाया या गेहूं बनाया या गेहूं उगाया, दैट इज एग्रीकल्चरल फाइनल प्रोडक्ट। That is agricultural final product. थोड़ा टेक्निकल है, जानवी मैडम एंड अदर, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ so that you understand what I'm teaching to you and other. ठीक है? Yes sir. चालेल, समजता है? हळूहळू शिकू, स्पीड मध्ये Yes, जाऊ, sir. प्लीज रिपीट। Yes sir, it is going in proper प्लीज pace. जाऊ, ओके, आर यू गेटिंग ना? Yes sir. क्या हो रहा है पता है क्या? गूगल लोगों का लैंग्वेज रहता है, गूगल लोगों का कैसे रहता है वो? My name is Suhas. It means what? Yes, yo, yes, ye, yes, Suhas. Sargal. Yes, ye, R, G, A, R. ऐसे होगा। So you are asking me something. यहाँ पे ईयरफोन कनेक्ट नहीं है ब्लूटूथ का, so आप क्या बोल रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। So I am asking her. She is repeating me. Yes sir, no sir, yes sir, no sir. मनमोहन सिंह की तरह, सोनिया गांधी यादव। Okay, so थोड़ा सा विशांतर, गूगल लोगों का लैंग्वेज होता है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, 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 N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ठीक, so कॉपी करो और तो बोलो, नहाओ, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करो। What is option? A, B, B. No, C, A. लेकिन यार तेरे पेपर का कोड कौन सा है वो तो बोल। हाँ, वो अलग रहता है ना, 4 सीक्वेंस रहता है एग्जाम में, A, B, C, D, A, B, B, C, C, D, D, ऐसे क्वेश्चंस पेपर है। अकॉर्डिंग टू दैट शफल होते हैं क्वेश्चंस, तो थोड़ा वो पूछ लेना और I, L, ठीक है ना। यहाँ पे अभी देयर इज अ क्वेश्चन जीडीपी। तो जीडीपी कैलकुलेट करना, देश के अंदर एक साल में
कितने वस्तुओं का और सेवाओं का निर्माण हुआ है, उसकी जो फाइनल प्राइस है, नॉट कॉस्ट, प्राइस, उसके ऊपर डिपेंड होता है जीडीपी। लेकिन अभी होता क्या, देयर इज वन माइन्यूट रूल कि वस्तु कौन सी, सेवा कौन सी, फाइनल, नॉट इन बिटवीन। एग्रीकल्चर में there are the three sectors of economy. First, agri. Second one is manufacturing. Third one is services. एग्रीकल्चर में फाइनल प्रोडक्ट गेहूं, ज्वार, बाजरा। मैन्युफैक्चरिंग में कार फाइनल प्रोडक्ट, ट्रक फाइनल प्रोडक्ट, लैपटॉप फाइनल प्रोडक्ट। सर्विस सेक्टर्स में सॉफ्टवेयर, टीचिंग का वीडियोस, या फिर अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर लॉट्स ऑफ इसे softwares are there like Windows, Bill Gates software. So it means वहां पे अलग अलग क्षेत्र, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, फाइनल प्रोडक्ट। ओके, लेकिन अभी गड़बड़ कहाँ पे होता है कि एग्रीकल्चर में फाइनल प्रोडक्ट गेहूं एक साल के अंदर हम लोग खा के खत्म करते हैं। लेकिन यार ये देश में बिल्डिंग्स, रियल इस्टेट वाला एक बार बना तो ऑन पेपर कम से कम 60 to 100 इयर्स वो चलता है। ये बिल्डिंग जिसमें हम लोग रहते हैं या अभी लेक्चर्स हो रहा है, वो कम से कम 60 इयर्स, 100 इयर्स, ऑन पेपर 60 इयर्स महानगर पालिका बोलती है कि ये टिकेगा। अभी प्रॉब्लम कहाँ पे होता है कि वो 60 इयर्स तक टिकने वाला है नहीं, बिकॉज ऑफ व्हाट, देयर आर द इन्वायरमेंटल इश्यूज। अगर मॉइस्चर है, ये समंदर के बाजू वाले हैं, कोकन किनार पर, कोकन का बे ऑफ कोंकण है, तो यहाँ पे लॉजिकली जमीन 40 साल से ज्यादा टिकेगा नहीं, टिका तो उसका, तो इट मींस प्रॉपर्टी जो ये साल में ये जो बिल्डिंग तैयार हुई है, इट इज अ फाइनल प्रोडक्ट, बट अगले साल यही बिल्डिंग अपने को पैसा देगी। इट मींस आइदर इट विल बी रेंटल इनकम, आइदर इट विल बी सेलिंग। एक मालिक ने तीसरा मालिक आया, उसने बेचा दिया। इट मींस द ट्रांजैक्शन इज गोइंग ऑन, बट द प्रॉपर्टी तो वही है ना। एक बार बनाने के लिए जो खर्चा डाला सीमेंट कंक्रीट के लिए, वो तो पैसा गया, दैट इज कॉस्ट। जिसने बेचा वो बिल्डर ने, उसने क्या किया, उसने गवर्नमेंट का टैक्स ऐड किया। से फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग बनी 1 करोड़, रेती, सीमेंट, ब्रिक्स, मेटल्स, इंटीरियर वगैरह, उसके ऊपर 1 करोड़ हो गया। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, से फॉर एग्जांपल 10 लाख ना, होता नहीं, 0.56% के आसपास रहता है, हम लोग कंसीडर करते हैं कैलकुलेशन पर्पस, इट्स 10 लाख। सो इट मींस 1 करोड़ 10 लाख। अभी बिल्डर क्या अन्ना हजारे क्या फ्री में आंदोलन करने के लिए, तो सोचेगा यार मेरी भी तो बीवी बच्चे हैं, मेरे घर वाले हैं, उनको भी तो पैसा चाहिए, और जो एम्प्लॉई है उनका तो सैलरी निकल गया 1 करोड़ के अंदर, अभी इसको भी तो प्रॉफिट चाहिए। तो इट मींस वो क्या बोलेगा, मैं मेरा 20 लाख इसके ऊपर ऐड कर दूं। तो एक्चुअल फाइनल फर्स्ट ओनर ने जो बिल्डिंग परचेस किया, जिसको सेल किया, तो फर्स्ट ओनर वो हो गया, ही इज अ सेलर। तो 1 करोड़ 30 लाख के आसपास आ गया। ओके, 1 करोड़ 30 लाख के आसपास वो बिल्डिंग का ऑन पेपर 2020 फर्स्ट मार्च से लेकर 31 ऑफ अप्रैल 2021 इट्स अ फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन यार ये बिल्डिंग 1,30,000, 1 करोड़ 30 लाख में ये साल इट्स अ फाइनल प्रोडक्ट, वी विल ऐड इट जीडीपी, इतना हम लोगों का फाइनल प्राइस था। लेकिन अभी ये नेशनल इनकम है, व्हाट नेशनल इनकम, देश का ये उत्पादन हुआ है, इसमें कितना देश का पूरा इनकम जनरेशन है। लेकिन अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि बहुत बार ये
एक मालिक दूसरे मालिक को बेचता है तो या बिना बेचे भी बिल्डिंग तो खत्म होने वाली है, उसका वियर एंड टियर तो होने वाला है। तो वो वियर एंड टियर कितना होगा? से फॉर एग्जांपल जो पहले की जो गाड़ी रहती थी 4 व्हीलर वो 10 साल तक टिकती थी। तो इट मीन्स कोई कंपनी यदि कोई गाड़ी का निर्माण करती है या तो वो गाड़ी 10 साल तक टिकी, तो मतलब तो हर साल ये साल भी जिसको बेचा वो यूज करेगा, उसका कुछ फाइनेंशियली एक्टिविटी के दौरान यूज करेगा। से फॉर एग्जांपल पर्सनल कार हम लोग ने परचेज किया, वेदर इट विल बी इनोवा, साइलो या बीएमडब्ल्यू। तो बीएमडब्ल्यू का ओनर का इंडिया में प्लांट था, तो उसने उसको मैन्युफैक्चर किया, तो वो हो गया फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन अभी जिसने परचेज किया गणपति बप्पा मोरया बीएमडब्ल्यू खेवनिया, बराबर कि नहीं, वो जिसने लिया वो ये साल भी यूज करेगा फाइनेंशियली, चाहे वो ऑफिस जाने के लिए यूज करेगा या दिखावे के लिए यूज करेगा, या ओला उबेर को भी बीएमडब्ल्यू देते हैं, नॉर्मली भी देते हैं। और शादी ब्याह है किसी का तो 6 घंटे का 2 घंटे का 50,000 बीएमडब्ल्यू में दूल्हा आया है, दुल्हन उधर से आई, ऐसा करके स्टेटस इंक्रीज। बट लेकिन उसका जो प्राइस था ये साल 1,30,00,000 था, जो भी रहेगा वो नेक्स्ट ईयर तो कम ही होगा ना। वो मैन्युफैक्चर तो दूसरी साल वो क्या हुआ नहीं, लेकिन वो पैसा दे रहा है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट। मतलब जो बिल्डिंग 1,30,00,000 में गया था वो अगले साल लगभग 1 करोड़ के आसपास है। उसके दूसरे साल वो फाइनल प्रोडक्ट गिना जाएगा, लेकिन उसका प्राइस 80 लाख के आसपास है। नेक्स्ट ईयर उसका प्राइस 60 लाख के आसपास आएगा, वो गिना जाएगा 60 लाख 5वें साल में फाइनल प्रोडक्ट। दूसरे साल में 1 करोड़, तीसरे साल में 80 लाख, ऐसा करके वो फाइनल प्रोडक्ट के कैलकुलेशंस में आ जाता है। मतलब बनाए की बात बनाया एक ही बार गया, लेकिन यूज तो बार बार गया। दैट्स व्हाई जीडीपी में जो नया बना वो कैलकुलेट होना इजी है, लेकिन जो पुराना था तो ये साल भी कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटी कर रहा है तो उसका कैलकुलेशंस करना डिफिकल्ट है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको डेप्रिशिएट कर देते हैं। इट मींस उसका जो प्राइस 1,30,00,000 था 2020-21 के दौरान, 2021-22 में उसको फाइनल प्रोडक्ट खाली 1 करोड़ कंसीडर करें। इट मींस हम लोग 1,30,00,000 में से 30 लाख माइनस कर दें। तो ये जीडीपी का वन एडजस्टमेंट हो गया। सेकंड एडजस्टमेंट होता है वो होता है सब्सिडी। अभी नॉर्मली क्या होता है, पेट्रोल या कुछ ऐसा एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स रहते हैं कि जैसे से फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स आ गए। ओके, तो ये जो फर्टिलाइजर्स रहते हैं ना, ये फर्टिलाइजर्स का एक्चुअल प्राइस, मतलब किसी किसान को इनके डाउट विचारना असेल तर जानवी अगर कुछ पूछना है तो आप मैसेज डाल के पूछो। व्हाट्स योर नेम? हाँ, रोशनी। तो रोशनी विल deliver your questions to me, online students are। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली फंडा ये है कि डेप्रिसिएशन का तो एडजस्टमेंट आपको समझा रहेगा, नो डाउट। या दूसरा अभी इशू आता है वो आता है सब्सिडी का। सेंट्रल गवर्नमेंट 1 एकड़ के खेती में यदि सपोज 100 रुपए का फर्टिलाइजर लगता है, कितना? 100 रुपीज। अभी लफड़ा ये होता है कि उसका प्राइस एक्चुअली 140 रुपया, हम लोग कैलकुलेशन पर्पस 150 रखते हैं। तो 150 रुपीज का मॉन्सेंटो एक कंपनी है जो बीज का उत्पादन करती है, या फिर कोई अलग अलग कंपनी है जो फर्टिलाइजर्स का मैन्युफैक्चर करती है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम वाला यूरिया। अभी 150 रुपए किलो का अपना गांव का धोती पहनने वाला किसान इतना तो दे नहीं पाएगा, और वो बोलेगा माई बाप सरकार क्या करे, तो महंगा हो रहा है।
we can't able to get what you are paying to us. So what they do? When central government comes, because central government or the any state governments are the popular leaders as per the democracy, they get voted by the people, and then they sit on the chair to rule the country for the 5 years. It means they need to consider, the political leaders and need to consider the emotions and the faith and the feelings and situations, right? Whether it is a financial or whether it is a caste or a situation of the peoples or the citizens of this nation. तो किसान बोलेगा कि 150 रुपया तो परचेस नहीं कर सकते, तो क्या करें? भारत सरकार बोलता है ठीक है, कंसल्ट हो तो 150 में ही बेचो, ऊपर का 50 रुपया जो है ना, जो किसान सह नहीं पाएगा, वो 50 रुपया हम तुम्हें देते। कौन देता? हम तुम्हें देते। तो इट मीन्स भारत सरकार के बीच में आने के कारण 150 रुपए का बॉडी 900 रुपए में मिल रहा है। तो अपने देश का वो जो प्राइस है, फॉर एग्जांपल वो कंपनी बेच रहा है 150 में, किसान खरीद रहे हैं 100 रुपया में, तो फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस क्या है? 150 रुपया। तो कैलकुलेशन में क्या आ रहा है? 150 रुपया। तो यहाँ पे ये जो सब्सिडी भारत सरकार ने दिया, इस सरकार का खुद का जेब से था, तो वी नीड टू एडजस्ट सब्सिडी आल्सो। तो प्राइस कितना हुआ? 100 रुपया। तो फाइनल प्राइस 100 रुपया ही गिना जाएगा जीडीपी के कैलकुलेशन से, 50 रुपीज में, क्योंकि वो तो सरकार ने एडजस्टमेंट किया। ओके, ये हो गया जीडीपी का दूसरा पर्पस। अभी तीसरा एक प्रकार आता है, उसको बोलते हैं कि नेट नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी या जीएनपी बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी, ओके, एनडीपी, सेकंड वन इज एनडीपी, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जो मैंने कैलकुलेशंस आपको बोला, डेप्रिसिएशन का, सब्सिडी का, टैक्सेशन का, ये सारा प्लस माइनस करके जो रहता है वो ये रहता है नेट। से फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे जोक आता है, लड़की पूछती है लड़के को कि टेल मी आफ्टर डिडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, घर का ईएमआई, कार का ईएमआई, तुम्हारा ट्रैवलिंग का कॉस्ट, तुम्हारा ज्वेलरी का कॉस्ट, या मोबाइल का ईएमआई, सारा जाने के बाद बचता कितना है, वो पैकेज मेरे को बोल, तब जाके मेरे साथ शादी करूंगा। तो ही इज आस्किंग नॉट टर्नओवर, ही इज आस्किंग एक्चुअल रियल में तुझ्याकडे आहे किती ते सांग, किती कमवते ते नको सांग। धंधे में लाखों का टर्नओवर होता है, लेकिन यार किसी का धंधा रहेगा या बिजनेस रहेगा तो उसमें से कुछ प्राइस रेंट को चला जाता है। से फॉर एग्जांपल 1 लाख का बिजनेस हुआ, दैट इज अ टर्नओवर, तो उसमें से रेंट चला गया, से फॉर एग्जांपल 20,000, 5,000 उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल था, 5,000 उसका ये सारा साफ सफाई वगैरह करना या अदर एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस आप लोग बोलते हैं, मतलब किरकोळ खर्च। और तो फाइनली कितना हुआ? फाइनली लगभग वो 40-60,000 बचा। 60,000 में भी उसने क्या किया था? 50,000 का माल लिया था, जो बेचना है ना कुछ तो गुड्स, वो लिया था। तो 50,000, ये 20,000, ये 10,000, 5,000, फाइनली उसके हाथ में 10,000 बचा, और वो 10,000 हो गया उसका एक्चुअल इनकम। बट फिर भी उसमें मोदी आ जाता है, उद्धव ठाकरे आ जाता है और बोलता है कोविड-19 का वैक्सीन देना है ना, रास्ते बनाना है ना, एजुकेशन का खर्चा करना है ना, योजना भी चलानी है ना, तो थोड़ा सा हमका भी हमारा शेयर दे दे भाया। तो वो क्या होता है? 10,000 इज अ प्रॉफिट। वो बोलता है कि यार 20% तो लगेगा ही, वसूली सरकार है नहीं है, देश में वसूली सरकार, तो वो खींच लेते हैं। तो बचा 8,000, तो 8,000 उसका एक्चुअल इनकम। सेम थिंग, ये जो देश है ना, देश, इस देश में क्या सारे लोग अपने काले गोरे इंडियन ही है क्या? नहीं ना,
कोई है ना जो प्रियंका चोपड़ा हीरोइन जिसने यूएस के बंदे के साथ शादी किया, वो भी इंडिया में रहने के लिए आया ना? आया कि नहीं आया ना? फिर अपना राहुल गांधी का मम्मी सोनिया गांधी, वो भी तो इंडिया में आया ना? आया ना? और अपना चाइनीज का कंपनी इंडिया में आया ना? तो चाइनीज लोग भी यहाँ पे रहने के लिए आए ना? और अपने भी लोग बाहर गए ना? तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब ये देश के अंदर अपने लोगों ने कितना मैन्युफैक्चर किया, तो वो अपना पैसा, चाहे यार कुछ भी करें हम लोग, इधर ही खाएंगे, इधर ही कमाएंगे, इधर ही कमाएंगे ना। लेकिन अभी प्रियंका चोपड़ा का हस्बैंड वो रहेगा इंडिया में, प्रियंका का वीडियो शूटिंग निकालेगा, फिल्म बनाएगा, पैसा इंडिया से कमाएगा और किधर भेजेगा? उधर उसके घर पे। तो इट मीन्स वो तो माइनस हो गया ना। कमाया इधर, टैक्स तो भारत सरकार को मिला, वो तो माइनस हो गया ना। तो वो आ जाता है अपने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऊपर से। दूसरा है नेशनल इनकम। अभी नेशनल इनकम एक बिगर टर्म्स है, ग्रॉस नेशनल इनकम और नेट नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम बोले तो ये देश के जो भी लोग हैं वो अपने देश का ग्रॉस नेशनल इनकम है। ओके। और यहाँ से कुछ पैसे बाहर भी भेजते जाते हैं ना इंडिया की तरफ से, इंडियन ही लोग हैं। इट मीन्स जो मैंने अभी आपको स्टोरी बोला कि लड़की पूछती है कि यार 1 लाख का टर्नओवर है, समझ लो। लड़का एकदम बड़े बड़े गप्पे मारता है, और मेरा बिजनेस इतना बड़ा है, इतना बड़ी दुकान है, इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सारे एम्प्लॉइज है मेरे पास ये है, वो है, वो है, वो है। लड़की पूछती है बचता कितना है? होता है ना ऐसे। मैंने 100 मार्क का पेपर था, वो फिजिक्स का 100 मार्क का, अकाउंट्स का 100 मार्क का, इकोनॉमी का 100 मार्क का था। मिला कितना वो बोल, गवाया कितना वो बोल। पेपर नहीं पढ़ा यार, बस पेपर एकदम अच्छा था, आंसर कितना लिखा वो बोले। तो सेम थिंग नेट बोले तो सारा माइनस करके, नेट बोले तो जाली, क्रॉस बोले तो बड़ा। बड़े बड़े गप्पे मत मार। गोल है दुनिया, जी फॉर गोल, जी फॉर ग्लोब। ग्लोब के बारे में बहुत बोल, नेट के बारे में बोल। इनकम के बारे में मत बोल, नेटवर्क के बारे में बोल। लेक्चर का देखा है 1 2 3 4 ओके। ओके, सो ये सारा गड़बड़ है। नाउ देयर आर द कंसेप्ट। जानवी, आर यू अंडर? आवाज करो मैडम। जानवी, आर यू getting what I'm telling till now? Other student please reply. समझ रहा है क्या सारा? Yes, हाँ, sir. समझ रहा है ना? Shall I go now further? आगे जाओ। Yes, sir. Yes, sir. प्लीज रिप्लाई। Yes, समझते sir. का सगळ्यांना? आपको टेक्निकल है, कॉमर्स में ना नहीं रहता, इससे ज्यादा आरबीआई ग्रेड में या बैंकिंग सेक्टर्स की इकोनॉमी में आता है, यूपीएससी में, फाइनेंशियल में। हाँ, येतं काय केलं? समजलं सगळं? प्लीज रिप्लाई। सब कुछ समझा सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई। समझ लेना। यस वी कैन गो अहेड। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ अभी एग्जाम में क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं? एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वर्ल्ड बैंक के तहत या आईएमएफ। अभी वर्ल्ड बैंक क्या है और आईएमएफ क्या है ये थोड़ा मैं थोड़ा सा विस्तार से बोलूँ। Does anyone know what is World Bank and what is IMF and what is WTO and what is United Nations? Anyone?
You all are from commerce background, science background अगर कोई रहेगा तो तुम्हें कंसेशन मत बोला तो भी चलेगा, क्योंकि तेरे को पता ही नहीं है क्या है सिस्टम. यस. What is WB? World Bank? What is Asian Development Bank? What is what we call as BRIC nations? What are the roles of the IMF? What is monetary policy? Yeah. Anyway, just idea, roughly. कुछ तो पता रहेगा, कुछ भी जो भी पता रहेगा. You can talk in your mother tongue also. I understand Marathi, Hindi, English, गुजराती थोड़ा बहुत समझता है. साउथ में मत बोलना, गाली दिया प्यार से बोला तो भी सारा गाली ही करता है. आड़ा आड़ा थोड़ा आइए कुछ नहीं समझेगा. या प्लीज. हाँ बोला. व्हाट इज वर्ल्ड बैंक? कुछ क्या पता है वर्ल्ड बैंक के बारे में? मोदी के बारे में पता है? पता है. डोनाल्ड ताते के बारे में पता है? जो बाइडेन के बारे में पता है? कमला हैरिसन के बारे में पता है? द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अ टेम्पररी पीरियड के लिए बनी थी. शी इज अ नेटिव इंडियन. मतलब उसकी माँ जो थी वो केरला की, पापा वगैरह से नहीं, माँ केरला की थी. तो इंडियंस बड़े खुश हो गए. इंडिया की भारत की लड़की, मेरे देश की लड़की वहाँ राष्ट्राध्यक्ष बनी. जो यूएसए के 250 साल, 350 साल के इतिहास में भारत की महिला कभी प्रधान राष्ट्राध्यक्ष नहीं बनी थी, मेरे देश बनी थी. अभी मनोज कुमार रहता ना, मनोज कुमार मूवी वाला, तो बोलता जीरो दिया मेरे भारत ने, अमेरिका को महिला राष्ट्राध्यक्ष बनाया. अमेरिका एक ऐसा देश है जो बोलता तो है कि मैं मॉडर्न हूँ, लेकिन फिर भी अमेरिका ने बराक ओबामा जो ब्लैक था, जो मुस्लिम पेरेंट्स का लड़का था, उसको चुन के लिया. लेकिन बिल क्लिंटन की वाइफ हिलरी क्लिंटन, जो बाई रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, बाई स्किन वाइट है, उस औरत को राष्ट्राध्यक्ष स्वीकार नहीं किया. तो उनका बोलने का, वी आर मॉडर्नाइजेशंस, वी आर सेक्युलर, वी आर सो एडवांस कंट्री, बट लेकिन जेंडर के बारे में अमेरिका आज तक पुरुष को ही मतदान करता है. इंडिया बोलता है कि तू मेरे पैर की जूती है, तू मेरे पैर की जूती है, तू चूल्हा ने मूलसगा, तू बच्चे ही संभाल. लेकिन फिर भी अपने देश में स्टार्ट फ्रॉम रजिया सुल्तान 13th of century, मुगले आजम के पहले, अलाउद्दीन खिलजी, पद्मावती मूवी देखा है? बच्चों को ना एंशिएंट इंडिया बताते समय ये पद्मावती मूवी बोला तो पटाख से याद आता है. हाँ सर, दीपिका पादुकोण. यस. तो वो जो भारत में आया था, तो भारत में उसका एक गुलाम था, अलाउद्दीन खिलजी छोड़ के गया था, जिसका नाम था मलिक कफूर. वो हिजड़ा था ना, हिजड़ा. उसके बाद वो जो साउथ इंडिया तक लड़ा, चुना, अपना देश को हराया, और वापिस जाते समय कुछ गुलामों को रखे था. दैट इज अ सल्तनत, चहलगनी, जिसको 40 अलीबाबा 40 चोर थे ना, वैसे ये 40 लोगों का एक ग्रुप देश में उसने रखा अपने देश के ऊपर कंट्रोल करने के लिए. और फिर अपने देश चला गया अफगानिस्तान के बाजू में, उसका रीजन था, वो चला गया. तो उसका जो कई 40 लोग लीडर, मतलब टीम का गुलामों का एक मेन गुलाम था, उसका एक लड़का था, वो बड़ा निकम्मा था. औरतें वगैरह, दारू, बाई, बाटली वगैरह इसमें सब डूबा रहता था. तो उसको ऐसा लगता था कि अपनी लड़की जो है उसको शासन पे बिठाया जाए. तो रजिया सुल्तान, हेमा मालिनी का मूवी है, जैसे यूट्यूब आंटी को पूछो, शो मी द रजिया सुल्तान, यूट्यूब आंटी आपको दिखाती है रजिया सुल्तान, हेमा मालिनी और धर्म. वो रजिया सुल्तान द फर्स्ट लेडी जिसने फ्रॉम जम्मू कश्मीर से ऊपर आमीर पठार है, वहां से लेके महाराष्ट्र और विंध्या पर्वत मध्य प्रदेश के बीच में वहां तक का राज्य. उसके बाद इंदिरा गांधी, अहिल्याबाई होळकर, ताराबाई भोसले, ताराबाई शिंदे, ऐसे कई सारे राजघराने की महिलाएं थी जिन्होंने देश के ऊपर राज. तो मैं यहाँ पे था, कहाँ पे था मैं? वर्ल्ड बैंक. यस. यूनाइटेड नेशन के तहत 6 विंग का निर्माण हुआ. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे खत्म हुआ,
1945 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा के ऊपर थिक मैन और टैट मैन करके नागासाकी के ऊपर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने ये अपना आइंस्टाइन ने जो रिसर्च वो किया था न्यूक्लियर का E=mc² का वो बॉम्ब गिरा दिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर तो इटली तो पहले ही शरणागत बना 41-42 के एंड तक 43 के एंड तक जर्मनी कभी शरणागत हो गई हिटलर ने गोली मार ली 1945 में खाली बचा था जापान तो जापान को कंट्रोल करना है तो अणुबॉम्ब डाल दिया तो अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हैरी ट्रूमैन या फ्रैंकलिन रूजवेल्ट यूएसए के जो 2 प्रेसिडेंट थे एक के बाद एक बने उनका ये ब्रेन चाइल्ड था कि यार हम लोग लड़के इश्यू को सॉल्व करने के बजाय यदि हम लोग कुछ गप्पे टप्पे करके डिस्कशन करके यदि जो कुछ मुद्दे के ऊपर हल ला सके तो वी हैव टू डू इट बट दैट फॉर दैट वी नीड सम कोएलिशंस दैट इज अ ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस ब्रेटन वुड एक प्लेस है अमेरिका के अंदर वहां के कॉन्फ्रेंस हुआ था काफी सारे जो दोस्त राष्ट्र थे अलाइड एक्सिस पावर यूरोप के जो जाने माने देश थे वो और गुलाम देश तो वो टाइम पे नहीं तो 1945 में एक्चुअल में यूनाइटेड नेशंस का निर्माण सारे देशों को मिलकर होगा तो उसके अंदर तो उन्होंने क्या किया 6 लीग्स था वर्ल्ड बैंक फिर अपना ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड एक इंस्टीट्यूशन है जो काफी चर्चा में दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट फ्रॉम दैट यूनाइटेड नेशन का एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूनेस्को कहते हैं जो हम लोग हेरिटेज बोलते हैं ना जैसे सीएसटी का रेलवे स्टेशन है या रायगढ़ किला है या फिर अपने कई सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स है बोलते हैं कि इनको नेशनल हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिलना इसके लिए काम करते हैं एजुकेशन सेक्टर्स में काम करते हैं कल्चर जो है पूरे वर्ल्ड का वो कैसे अच्छा रहे बढ़ता रहे प्रोग्रेस होता रहे इसको यूनेस्को जनरल असेंबली नॉर्मली पूरे जो 194 देश है पूरी दुनिया के वो सारे एक साथ मिलके कुछ मुद्दे के ऊपर कभी कुछ डिस्कशन करते हैं तो वो एक विंग है उसके अलावा दूसरा है जिसको कहते हैं WHO वो तो आप सबको पता है कि हेल्थ के रिलेटेड जो इश्यूज है वर्ल्ड के वो डिस्कस करते हैं और उसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस अगर रहा तो पूरे वर्ल्ड को वो इन्फॉर्म करते हैं उसके अलावा वर्ल्ड बैंक इज देयर वर्ल्ड बैंक का नाम हुआ था लॉन्ग टर्म डेट क्या लॉन्ग टर्म मतलब किसी देश को 15 साल 5 साल 10 साल तक कुछ अगर पैसा चाहिए तो क्योंकि हुआ क्या था अमेरिका के पास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चाहे वो ब्रिटेन वाला पार्टी रहे या जर्मन वाला पार्टी रहे दोनों देशों को दोनों तरफ के देशों को अमेरिका ने आर्म्स एंड एम्यूनिशन बेचे क्या बेचे थे आर्म्स एंड एम्यूनिशन ब्रिटेन को क्या चाहिए बंदूक हिटलर को चाहिए टैंक अमेरिका ने बेचा दोनों तरफ बेचा तो दबा दबा के पैसा कमाए बराबर ना दोनों तरफ का झगड़ा फायदा अमेरिका तो पैसा बहुत आया था तो अभी ये पैसा जो आया था उसको कहीं पे तो पार्क करना पड़ेगा उससे इंटरेस्ट लेना था तो दे डिसाइड टू मेक वन सच सिस्टम दैट विल लीगलाइज द ट्रांजैक्शंस ऑफ द मनी और अपने को पैसा आता है तो अमेरिका का ये पैसा यूरोप के देशों का ये पैसा ये वर्ल्ड बैंक के तहत जिसको जरूरत है वो लेगा ये लॉन्ग टर्म डेट की तरफ लंबी समय का 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल अभी देश है तो कर्जा लेगा डेवलपमेंट करना है तो कर्जा लेना पड़ता है तो अभी बहुत बार क्या होता है कि ईरान इराक या फिर सऊदी अरेबिया बहरीन कतार आखाती देश है गल्फ तेल बेचते तेल एशिया के कॉन्टिनेंट के अफ्रीका के अमेरिका के लोग तेल परचेस करते हैं तो सबकी अपनी अलग भाषा है सबका अपना करेंसी अलग है तो ट्रांजैक्शन करते हैं
क्या करते हैं, तेल तो मेरे को दे, मेरा रुपया ले। तो बोलता है नहीं भाई, रुपया तो नहीं चलेगा, अपने यहाँ पे तो दिनार चलता है। ईरान बोलेगा सऊदी अरेबिया का अपना करेंसी है। जापान बोलेगा नहीं भाई मेरे को ये नहीं चाहिए। चाइना बोलेगा मेरे को युआन चाहिए। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग करेंसी, तो ये करेंसी में ट्रांजैक्शन करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये जो मुद्दा है वर्ल्ड की बिजनेस के ट्रांजैक्शन से, फॉर एग्जांपल अमेरिका बेचना चाहता था कुछ चीजें, तो इंडिया बोलता था कि अपने को बर्फों की डीपी चाहिए, तो वो बोलता कि नहीं जॉर्ज वॉशिंगटन की डीपी चाहिए बर्फ। ये सर नो। ब्रिटेन आया तो बोलेगा मेरे को पाउंड चाहिए खाली, तो बाकी देश बोलेंगे नहीं। मैडम लेक्चर बोला बोला। हाँ हो हो आणि मंगळवार आणि शनिवारच्या ते दोन्ही बारावीचे तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का पर्पस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाते हैं, और है तो पैसे के मामले में वर्ल्ड बैंक भी पैसा ही डील करता है, आणि IMF भी पैसे के मामले में 160। ओके, तो व्हाट इज द रोल ऑफ IMF, व्हाट इज द रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक? तो लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस अगर किसी देश को करना है तो वर्ल्ड बैंक के तहत लंबा मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। से फॉर एग्जांपल इंडिया को रूरकेला और ऐसे कई सारे प्लान डालने। सिर्फ हमारे कोकण में आया था ना एनरॉन, एनरॉन या जैतापुर एटॉमिक एनर्जी के प्लान डालने थे, तो बड़ा लंबा पैसा लगता है, लंबे पीरियड के लगता है, ज्यादा पैसा लगता है। तो वो कहाँ से आए? फॉर दैट वी नीड सम करेंसी। भाई देश का पैसा अगर हम लोग वहां पे डाल देंगे तो वहां का गेस्टेशन पीरियड ज्यादा है, तो रेट ऑफ रिटर्न कम है, पीरियड ऑफ रिटर्न भी कम ज्यादा है। तो क्या करें? तो वी नीड सम मनी। तो वो कहां से आएगा? तो वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से हम लोग। जैसे 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ हमारे देश में, से 15 दिन, कोई लोग बोलते 14 दिन, कोई बोलते 15 दिन छोड़ना है, 15 दिन छुट्टी रहेगा, 14 दिन पकड़ना। तो 2 वीक्स का पैसा बचा था। उसके बाद वी डोंट हैव मनी, तो हम लोगों ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक के पास गए। वर्ल्ड बैंक को बोला यार, अपना मनमोहन सिंह था, अर्थ मंत्री था, जो RBI का एक गवर्नर भी रह चुका था। तो नरसिंह राव के पीरियड में नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, 1991 की बात है। तो मनमोहन सिंह के विनियत संभाणी पड़ा हुआ, विनियत संभाणी तो ऐसा ही था। मोदी रहता था विनियत बनी ऐसा बोल के चिल्ला चिल्ला के बोलता। तो उसने बोला वर्ल्ड बैंक को कि विनियत संभाणी सो काइंडली गिव अस। उसके पहले वो गया किधर? वो गया ब्रिटेन के पास, कि हम लोग तो कॉलोनीज थे, गुलाम थे। तो पर ऊपर से अपना ये अलिप्त राष्ट्र चल नेहरू का नॉन अलायंस मूवमेंट, ना अमेरिका के गुट में जाना ना रशिया के गुट में जाना, हम लोगों का अलग अधिष्ठान, हम लोग अलग रहेंगे। क्या करें? तो कोई दूसरा देश अपने को मदद करने वाला नहीं था, तो हम लोग गए ब्रिटेन के पास। ब्रिटेन की रानी थी वो टाइम पे, रानी को बोला, प्रधानमंत्री को बोला मनी। तो उसने क्या बोला, आपके पास बहुत सोना है। उसको सर भरोली करके फोन आया, तो रवीना सर या रवीना मैडम कुछ है, तो कॉल कर रहा है, बहुत गा रहा है। ओके, तो
उसने सोना गिरवी रखा, तो हम लोगों ने क्या किया, प्लेन में भर के सोना उधर डाला, 15 दिन का पैसा हमें मिला। वंस अगेन अमेरिका में अब ऊपर नहीं आई, तो हम लोग गए वर्ल्ड बैंक के पास। तो वर्ल्ड बैंक ने हमको बोला यू आर अ क्लोज इकोनॉमी, यू आर नॉट अलाउइंग द कंपटीशन इन योर कंट्री। तो आप किसी दूसरे देश के कंपनी को अपने देश में प्लान डालते समय बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन लगाते हैं। देश का पर्पस ये था कि हमारा बच्चा भारत के उद्योग क्षेत्र यदि ओपन किया जाए दूसरे देश की कंपनियों को, तो वो अच्छी टेक्नोलॉजी वाला, अच्छा पैसा वाला, अच्छा स्किल वाला आएगा और वो अच्छी चीजें बनाएगा। तो अपने देश के जो कंपनियां हैं वो कम पैसे वाली, कम स्किल वाली और कम दाम में बेचने वाली है, तो वो खत्म हो जाएंगे। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन अपना कोलैप्स हो जाएगा, ऐसी एक विचारधारा आई। तो हमने उनको अपोज किया था। अभी वर्ल्ड बैंक बोलते हैं भाई पैसा चाहिए तो ओपन करना, पैसा चाहिए तो ओपन। जैसे कोई बेवड़ा रहता है ना, बेवड़ा, उसकी लड़की बहुत सुंदर है, तो जो जमाई राजा रहता है ना, जमाई बोले तो लड़ता त्याचा डोळा असतो जमाईवर, तो काय करतो, बापाला कर्ज झालेले, मतलब जो बाप है लड़की का वो दारू पीता है या कुछ भी करता है, तो उसको अभी लड़की संभालनी है तो पैसा चाहिए। तो ये जो साहूकार नाम का जो विलन है या हीरो है, जो भी बोलो, वो बोलता है कि मैं तेरे को पैसा देगा बेवड़े, ड्रिंक कर, लेकिन यार तेरी लड़की का हाथ मेरे हाथ में दे दे। वो बोलता है यार सोचना पड़ेगा, क्योंकि तू तेरे लड़के को बाहर के भी बेचता नहीं, तो मेरे को चाहिए। वो बोलता है यार मेरी लड़की को कोई उठा के लेके जाएगा, कोई देखेगा तो मेरे को बुरा लगेगा, इसलिए मैं किसी के साथ मिलने नहीं देता। तो बोल रहा है ठीक है यार। तो सेम थिंग यहाँ पर विद वर्ल्ड बैंक इन इंडिया, India wants to protect their industry from the external competition, and World Bank wants the economy to be open. Why? Because World Bank ये USA का एक ब्रेन चाइल्ड है, यूरोपियन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक सिस्टम है, जिसके तहत वो लोग मैन्युफैक्चर करके और एशियन मार्केट में, इंडियन मार्केट में वो बेचें। तो खरीदने वाले पॉपुलेशन ज्यादा इंडिया में है। इंडिया में यूएसए का पॉपुलेशन कितना है, यूरोप का पॉपुलेशन अक्खा मिला के इंडिया के हाफ थी, तो उनको मार्केट चाहिए, नीड सम मार्केट। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के ऊपर फोर्सफुली अपनी इकोनॉमी को ओपन कर, तेरे घर की हाथ मेरे हाथ में। तो इंडिया बोला अभी क्या कर, जिंदा तो रहना है, इकोनॉमी तो चलानी है, कर्जा कोई दे नहीं रहा, रिटर्न से लेके आए तो 15 दिन में खत्म हो गया, तो व्हाट टू डू। ठीक है, शुभमंगले सावधान। तो क्या होगा, वर्ल्ड बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी एक्सेप्टेड। हम लोगों ने क्या किया, अपने देश के जो द्वार थे वो खुले कर दिए। न कम होंडा, कम हुंडई, कम सैमसंग, कम सोनी, सारे अपने देश में आ गए और उन्होंने अपने अपने प्लान डाले। तो ये हो गया ओपन इकोनॉमी का सिस्टम। फिर अपने देश में थोड़ा सा हम लोग सोशलिज्म को मानते, यूएसए का सोशल मॉडल, अमेरिका का कॅपिटलिस्ट मॉडल। जान्हवी समजतंय का, हे प्रश्न विचारले जातात इकॉनॉमिक्स, आरबीआय ग्रेड बी किंवा इतर कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स मध्ये, इकॉनॉमी रिलेटेड बैंकिंग मध्ये पण इंटरव्ह्यूला असे क्वेश्चंस विचारतात। जरा देखो वो क्या बोल रही है। जान्हवी प्लीज बोल। जान्हवी एंड अदर आई थिंक I'm getting, sir. समझता, ठीक है। ये पता था क्या उसको, कुछ ओपन इकोनॉमी पता, वर्ल्ड बैंक इश्यू, आईएमएफ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पता था? प्लीज रिप्लाई जानवी, ये पता था? हाँ पता है? हाँ Yes, sir. I was knowing this. तो ब्रिटिश के बाद वर्ल्ड बैंक ने कुछ रूल्स रेगुलेशन अपने ऊपर लगाए, और इसका तरीका या नतीजा ये निकला कि हमको देश को ओपन करना पड़ा। और जैसे ही अपनी इकोनॉमी ओपन होगी, हमारे ऊपर कंप्यूटराइजेशन आ गया, बंधन आ गया कि जो सरकारी कंपनियां हैं जो सरकार चलाती, उनको ओपन मार्केट में उनके कुछ शेयर में बेचने पड़े, जो इंडिया के लोगों ने या
उसका जो ओनरशिप था वो बाकी प्राइवेट सेक्टर्स ने परचेस किया और उसमें कुछ छाना। अभी सरकारी पोस्ट ऑफिस कैसे चलता है? हाँ, क्या काम है? एसबीआई बैंक में कभी गए होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको अगर अकाउंट ओपन करना है तो एसबीआई वाली मैडम बोलेगी, लिपस्टिक लगाती है, कांच आगे रहता है, वो बोलती है क्या? तो बोलते तो मैडम अकाउंट ओपन करना है। कौन सा? सेविंग की करंट। बोलता है सेविंग। तो वो बोलता है मैडम क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? वो उधर लिखा है बोर्ड के ऊपर, पढ़ो वो डॉक्यूमेंट चाहिए। जाता है, वो बोलता है मैडम बहुत बोर्ड के ऊपर लिखा है, क्या है वो, थोड़ा संक्षिप्त में बोलो। मैडम बोलती है काम में बिजी। वो बोलती है कि थोड़ी देर के बाद आओ, मेरे कस्टमर आ। तो शी इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एसबीआई वाला। यदि एक्सिस बैंक में जाएंगे या फिर आईसीआईसीआई बैंक में, तो जैसे ही आप दरवाजे से अंदर आते हैं तो मे आई हेल्प यू सर, स्माइल करके वो लड़का या लड़की अपने को रिप्लाई देता है। मींस व्हाट, देयर इज अ प्राइवेट बैंक, दे नीड सम कस्टमर, दे नीड सेविंग वाला मनी, करंट अकाउंट वाला मनी, सो दैट दे लेंड द मनी टू दी देयर डेटर्स, जो कर्जा लेने वाले लोग हैं, लोन देने वाले उनको। लेकिन यहाँ पे होता नहीं है सर। सो गवर्नमेंट सेक्टर ऐसा है, क्योंकि उनको लेडीज जो है क्लास स्टाफ, वो अगर वो बोलती है कि वो बोलता है मैडम एटीएम भी चाहिए, कौन सा नाम आपका उसके ऊपर चाहिए या प्लेन वाला चाहिए? वो बोलता है मैडम नाम वाला चाहिए। तो ये बोलती है कि, तो वो बोलता है को आगे वाला कस्टमर पूछता है मैडम कब कब तक मिलेगा? तो ये बोलती है रुको थोड़ा मैं पूछ देती हूँ। तो कांच के ऊपर वो साइड के ऊपर दूसरा आरबीआई का लेडीज रहता है, वो लिपस्टिक लगा देती है। ये पूछती है कायगा एटीएम कार्ड कधी येणार है, वो कब आने वाला है? वो उधर से बोलती है अगो ते एटीएम कार्ड बनवून देणार आहे ना, तो सुट्टीवर गेलेले आहे, वो जॉब पे गए, उसका वो क्या पता नहीं यार, वो 15 दिन तो नहीं है, तो एक काम कर उनको बोल 20 दिन के बाद आने का, मिल जाएगा। वो लेडी जिसको आंसर देना था वो अभी बोल रही है सर 25 दिवस लगती, मतलब अपनी तरफ से 10 दिन बढ़ा के। सो दिस इज द गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर सर आप जस्ट डॉक्यूमेंटेशन से वो फुलफिल नहीं सर, मेरे पास अभी जेरॉक्स नहीं। नो प्रॉब्लम सर, वी टेक इट। आपके पास सॉफ्ट कॉपी है गूगल के ऊपर फोटोज वगैरह, आधार कार्ड या पैन कार्ड है? ओके नो प्रॉब्लम सर, गिव इट वी विल डू। सर प्रिंट निकाल के क्या सर? और वो कार्ड भी तुरंत दूसरे दिन या शाम को ही डिलीवर घर पे हो जाए, फास्ट। सो सेम थिंग हैपन विद HOCL, हिंदुस्तान की सारी कंपनियां, IUCL इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सारे कंपनियों के टैक्स हमें देने पड़े। नाउ देयर इज वन कांसेप्ट इज कॉल्ड द डिसइन्वेस्टमेंट एंड डाइइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट अपना पैसा निकाल के प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर। दूसरा है डाइवेस्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट अपना पैसा निकाल के किसी दूसरे कंपनी में डाल दे, दैट इज डाइवेस्टमेंट। तो अभी होता क्या है कि गवर्नमेंट के पास, जैसे अभी एयर इंडिया का, एयर इंडिया गवर्नमेंट ने फिर से बेचा, लेकिन 1947 में 1910 में जो रतन टाटा जमशेदजी टाटा वाला ग्रुप है, उन्होंने इंडियन एयरलाइंस का निर्माण किया था अपने लिए, उनके लिए, देश को ट्रांसपोर्ट। ओला उबेर वो टाइम था, तो ओला उबेर ने खुद का ही कंपनी, खुद ही लोगों का आवागमन कर दिया। लेकिन अब जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ, आइडियोलॉजी ऑफ द कैपिटलिस्ट नहीं था, सोशलिस्ट था, तो नेहरू की सरकार ने इंडियन एयर इंडिया को परचेस कर लिया, पर बोला टाटा नहीं चाहिए, टाटा ने देना पड़ा। क्या का रूल, देश का रूल, गूगल फेसबुक को भी मानना पड़ा, व्हाट्सएप को भी मानना पड़ा, ट्विटर को भी मानना पड़ा। इट इज कॉल्ड द सोशल लॉज, सोशल मीडिया के ऊपर लगा था, या फिर कंपनी लॉज की तरफ देना पड़ा। नाउ अगेन वो कंपनी बेचना भारत को पड़ा। क्यों? नाउ आवर कंपनी और आवर इंडिया इज मार्चिंग टुवर्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहता है प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट का रूल सिर्फ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, रूल्स रेगुलेशन को प्रोवाइड करना है। क्रिटिकल इश्यू, कोई इमरजेंसी आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, फ्लड आ जाता है, वॉर आ जाता है, सिटीजन्स का एजुकेशन देखना, हेल्थ देखना, बेसिक। बाकी मैन्युफैक्चरिंग कितना करना है, कब करना है, कौन सा करना है, ये सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर देखेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर देखेगा तो कैसे देखेगा? भाई जियो ने मोबाइल लाया, एयरटेल पहले था, उसके पहले वोडाफोन था, हज था, कई सारी कंपनी,
वो क्या करती थी 3 रुपए 1 मिनट का कॉलिंग, दूसरी कंपनी आगे बोली 2 रुपए में 1 मिनट का कॉलिंग, तीसरी आगे बोली 1 रुपए का 1 मिनट का कॉलिंग, चौथी आ गई वो बोली 1 पैसा 1 सेकंड का कॉलिंग। जियो म्हटला सगळं फुकट 2 साल फ्री में। क्यों? क्योंकि जियो ने क्या किया, जो वॉर जो था ना वो कॉलिंग के ऊपर था, कॉलिंग रेट के ऊपर था, इंटरनेट के ऊपर नहीं, डेटा के ऊपर नहीं था। एयरटेल, वेयरसेल, वोडाफोन, हच, यूनिनॉर, टाटा डोकोमो वगैरह क्या देते थे आप देखो, 1 GB का या 2 GB का डेटा महीने का 300 रुपए में देते थे। 2008 2009 तक 2012 तक ये रेट था। जियो ने क्या किया, कॉलिंग को फ्री में कर दिया, इंटरनेट का बहुत अच्छा। ये लोग इंटरनेट नहीं दे रहे थे, डेटा नहीं दे रहे थे, जो इंटरनेट लोगों को कॉलिंग फ्री में। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द फ्रूट्स ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। तो ये कंपटीशन प्राइवेटाइजेशन के पीरियड में पॉसिबल। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट का रूल्स रहता तो बजाज को बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बजाज, वो जो था ना बजाज स्कूटर, वो एक हस्बैंड वाइफ, बीच में लड़का, पीछे 2 बच्चे, फिर वाइफ, ऐसा वो चलता था। बराबर ऐसे ही कल्चर था बुलंद भारत। पुराने आते को यूट्यूब की, तो कितना गाड़ियों का प्रोडक्शन कर, कौन से गाड़ी का प्रोडक्शन कर रहे, उसका प्राइस क्या है, सारा का सारा इंदिरा गांधी, वीपी सिंह, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू देखते। 1985 के दौरान राजीव गांधी की जब सरकार आई, जब सरकार ने बोला यू कैन प्रिंट और यू कैन मैन्युफैक्चर, जिधर 1 लाख होता था उधर 10 से 15 लाख मैन्युफैक्चर करने को अलाउ किया। इट मींस इट्स अ क्लियर कट साइन of the Indian economy or the Indian Prime Minister in the world, they are going towards a capitalist economy. Now, there are the lots of strikes are happening in India, like ST Mahamandal. तो ST Mahamandal के employees का डिमांड है कि they want governmentalizations, मतलब they want उनका जो मंडल है या उनका जो डिपार्टमेंट्स है उसको गवर्नमेंट में कन्वर्ट किया जाए। But there is a two kinds of issue. अगर आप RBI के या फिर नाबार्ड के या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में जाते हो तो इंटरव्यू में आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, वहां के क्वेश्चंस अगर कुछ करंट अफेयर्स में हो रहा है तो they definitely ask these questions. Like if you are from the Vidarbha, then they always ask the questions, do you want the separate Vidarbha? What is your opinion on the different or the separate Vidarbha state? क्या आप विदर्भ अलग चाहते हो? तो वो बोलेगा अगर विदर्भ का समर्थक रहेगा देवेंद्र फडणवीस का, लबाड़नीस का, फडणवीस का, तो बोलेगा हाँ सर चाहिए। अगर वो शिवसेना का रहेगा या फिर थोड़ा सा प्रो महाराष्ट्र मराठी पीपल तो बोलेगा भारत का वेगड़ा मांगे फटके दे, तो इट मींस व्हाट मैं नहीं चाहता। सो इट मींस व्हाट इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू आइडियोलॉजीज। और आपको एग्जाम में यही क्वेश्चंस पूछ के they just want to check your partiality or the non-partisanship. तो कितना कट्टर हो, कितना कट्टरतावाद नहीं है। They need neutral people in the administration. So your opinion is always based on that. So आपको बोलना चाहिए हाँ we need employees job, it's a social welfare, well-being। भारत ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को स्वीकार किया है। As per our preamble, the Indian government is saying we the people of India करके blah 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 blah, we give the liberty, justice and equality to our nations in terms of employment, education वगैरह 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 से किताबें स्कूल की रहती है उसके ऊपर लिखा रहता है। So in the context उसी विचारधारा या उस चौपट में रखे एम्प्लॉय को, जो भारत के चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स करे या गवर्नमेंट सेक्टर्स करे, उनको बेसिक लाइवलीहुड्स, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। अगर वो काम करते हैं तो उनको उतना पैसा मिलना चाहिए, तो उनका सैलरी बढ़ना चाहिए, वर्क का हाइजीनिक कंडीशंस रहना चाहिए, उनके लाइफ पार्टनर्स, उनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलनी चाहिए। दिस इज अ वेलफेयर इकोनॉमी, इट्स नॉट अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। वी नीड टू कंसीडर दैट एंगल। सो तो गवर्नमेंटलाइजेशन होना चाहिए क्या सर? आई विल बी आंसरिंग नेक्स्ट टॉपिक। ऐसा बोल के second step up. First step, we need to consider the employee, whether it is a
under the labor laws of the world and India, you need to take care of each and every employee, whether it is a class 4 or a class 1 employee, whether it is a government or the private sector employees. But second point is there कि we are in the developing economy stage. हम लोग developing देश में economy है, तो there are the chances. It's a natural that to start from the independence till now, we are having a both sectors because we are a child of the social economy. We are a child. Our economy is a child of the समाजवादी अर्थव्यवस्था. हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था से भांडवलशाही अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं, तो ये ऐसे इश्यूज आएंगे, So it is a natural that few employees are under the government sectors, and it's a man nature कि उसको अच्छा मिला मुझे क्यों नहीं मिला, उसको वाइफ अच्छी मिली मुझे क्यों, उसको हस्बैंड अच्छा मिला मुझे क्यों नहीं, बंटी तुझा साबन स्लो है का. So that kind of the personal emotions are there and these issues are there. It's a democracy. They are having a rights to raise their voice. उनको अधिकार है, उनको मिलना चाहिए. अभी गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रहा, ये एडमिनिस्ट्रेशन के एंगल से देखो, पॉलिटिकल एंगल से देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल, are you getting Janvi? Such kind of the questions are asked in the interview. Please reply. Online student, please reply. समजते का जे बोलतोय ते हे क्वेश्चन्स विचारले जातात इंटरव्यूज मध्ये आणि ग्रुप डिस्कशन. यस सर, ओके. तो ये क्वेश्चन से पूछा जाएगा. इट इज अ क्लियर कट द रोल ऑफ द कंट्रोल ऑडिटर जनरल. सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑडिटर है उसका रोल आता है यहाँ पे, और स्टेट गवर्नमेंट का ऑडिट डिपार्टमेंट्स आता है. ये जो डिपार्टमेंट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी इट इन पॉलिटिकल एंगल्स. पॉलिटिकल एंगल से अगर देखा जाए तो जिसको मंत्री पद नहीं मिला वो कार्यकर्ता पार्टी अभी ये क्या होता है कि पार्टी छोड़ने की बात करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं पे पार्क करने के लिए ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स, आरोग्य विभाग, शिक्षण विभाग, समाज कल्याण विभाग, एसटी महामंडल, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, तो उसका हेड बना देते हैं पॉलिटिकल लीडर्स को. ये हो गया पॉलिटिकल पार्टीज मजबूरी या कंपल्शन. दूसरा है कि यदि वो गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर आ जाता है तो भारत सरकार से जो कंट्रोल ऑडिटर जनरल, मतलब जैसे इंडिविजुअल पर्सन का अकाउंट हैंडल करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट रहता है, वैसे कॉर्पोरेट के लिए कॉर्पोरेट अकाउंटेंसी वगैरह रहते हैं. सेम थिंग, देश का अकाउंट्स ऑडिट देखना ये कैग का रोल रहता है. अगर ये एसटी महामंडल यदि गवर्नमेंट के अंदर आ जाता तो उसका भी ऑडिट क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का. पॉलिटिकल लीडर्स है, को पैसा खाने के लिए चाहिए, तो पैसा अगर खाने के लिए चाहिए तो ऑडिटर के इसमें आ गया तो पेपर सब दिखाने पड़ेंगे, कितना आया कितना गया कैसे गया, तो वो उनको दिखाना है. तो अगर उसमें डाल देंगे तो सब भारत सरकार के पेपर में, स्टेट और राज्य सरकार के पेपर पे आ जाएगा. मंडल रखा तो ऑडिटर जो रहते स्टेट लेवल के तो मैनेज कर लेते. पैसा मिल रहा है इसलिए पॉलिटिकल लीडर्स नहीं दे रहे. अपने कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष बनाने के लिए पॉलिटिकल मजबूरी है तो वो इन्वॉल्व नहीं कर. दूसरा है कि अपना देश टुवर्ड्स कैपिटलिस्ट जा रहा है, और मार्केट के एंगल से देखा जाए तो ये जो लोकेशंस है एसटी महामंडल के अलग अलग जिले में प्राइम लोकेशन, कम से कम 10 से 20 एकड़ का जमीन, कम से कम कई बार तो 40-50 एकड़ का प्लांट जमीन का टुकड़ा है जहाँ पे एसटी महामंडल सिचुएटेड है, उसके डेपोज है. तो ये अगर प्राइम लोकेशन अगर मिले तो बिल्डर लॉबी तो चमकीली हो जाएगी. ये रीजन है कि वो नहीं कर रहे. और अगर एम्प्लॉय के एंगल से देखा जाए तो इट्स अ डेमोक्रेसी. जो मिल रहा है वो एक्सेप्ट करो, जो नहीं मिला उसके लिए आज रुक जाओ,
अगली दिवाली फिर रिवोल्ट करो, तब जाके आपको ये राइट्स मिलेंगे. शाने असतील तर या वर्षी आहे तसे स्वीकारतील. अडून बसला तर काहीच मिळत नाही. सरसलामत तो पगड़ी बचे. जितना मिला है बचेंगे तो और भी लड़ेंगे. तो पहले बचना सीखना चाहिए. जितना मिला है 41% सैलरी हाइक ले लो. डेट के ऊपर सैलरी मिलेगा 10 तारीख के पहले. स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, ले लो, एक्सेप्ट करो. अगली बार फिर से स्ट्राइक करो. तो जो लीडर्स थे सदावर खोतर वो पिछन पड़कर वो हट गए. जितना था उतना दिया. अभी वो समझा रहे कि जितना मिला उतना ले लो, बाद में करेंगे. अभी शशांक राव आ गया, बीएसटी का पॉलिटिकल लीडर, जिसने बीएसटी के कर्मचारी को सैलरी बढ़ा के दिया था. सदावर्ते वकील लॉयर है, उसका क्या जाता है. एम्प्लॉय अगर काम से घर पे गए वो तो केस लड़ेगा. कोर्ट का रूल है, जुम्मे के जुम्मे हर साल तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख. मीनाक्षी शेषाद्री दामिनी मूवी सनी देओल वो मूवी में देखा. कोर्ट का चक्कर चलता है. वो वकील है, उसको क्या जाता है. गिरनी कामगार, तो आपको अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो उनको बोलना कि मिल ओनर्स का 1982 में स्ट्राइक. दैट स्ट्राइक ऐसे ही हुआ था कि उनको पगार बढ़ा के चाहिए था. मिल ओनर्स को कपड़ा मिल के या जो एम्प्लॉय थे मुंबई के प्राइवेट सेक्टर का 3 रुपए 4 रुपए पगार था, उनको बढ़ा के चाहिए था पगार. तो मिल ओनर मान नहीं रहे थे. तो दत्ता सामंतर के एक लीडर्स था जो दूसरे आंदोलन को कंट्रोल करता था. तो कई सारे बिलियनर के लीडर्स थे, वो गए दत्ता सामंत के पास और उनको बोला कि सर आप भी हमारा नेतृत्व करो. तो उसको वो बोला मेरे कुछ समझता नहीं है. फिर भी फोर्सफुली हुआ, पॉलिटिकल कंपल्शन वगैरह तो करा. फाइनली मिल ओनर का महीने का ओनर ने 4 महीने के बाद उनकी सैलरी बढ़ा के 4 रुपए से 30 रुपया कर दी मंथली. फिर भी मिल ओनर के खिलाफ ये एम्प्लॉय जो थे वो मान नहीं रहे थे. दत्ता सामंत ने बोला जितना मिला है वो करो. फाइनली सारे एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए थे. 4 साल तक कोई मिल महाराष्ट्र की मुंबई की चालू नहीं हुई थी. तो जितने भी मिल ओनर्स थे उन्होंने लॉस में चले गए. जमीन बेचा, कंपनी बंद बर्बाद हो गई. लोग यहाँ पे खाने के लिए नहीं मिल रहा, दूसरा काम कर नहीं सकते. तो एक ही क्वेश्चन में तो अपने गांव चले गए, कोंकण में या अलग अलग महाराष्ट्र के रीजन में. और वो जगह जो आज गिरगांव, दादर, वडाला, सायन, वो जो रीजन है जो मुंबई का, वहां पे आज जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है वो बिल्डिंग एक्चुअल में मिल कंपनी की जगह थी. दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स. तो मिल तो मैं बोलता था पॉलिटिकल में मराठी माणूस मुंबईच्या बाहेर फेकला गेला असा फेकला गेला. कळलं. ठीक आहे. गुजराती मारवाडी नाही घालवले, आपण लोक गेलो पॉलिटिकल गेम. बिल्डर लोगों का गेम. अभी ये गेम ऐसे ही चल रहा है. शाने असतील तर साबित होतील, पट मारतील. So that's all, Janavi. Do you have any doubt? Are you understand? समझा जानवी? जानवी, please. Yes, sir. काही डाऊट आहे का? No, sir. लेक्चर कसं वाटलं? It was okay, sir. But it could have been better. It could have been better, but it was okay. Since it was first lecture, I can understand you had to go a little slow. Yeah. But we will wind up over here. Okay, sir.